तो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट, है ना। तो इसके स्टेप्स थे प्लेट थिकनेस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप रिवेट डायमीटर, थर्ड वन इज पिच, फोर्थ वन इज ट्रांसवर्स पिच, फिफ्थ इज मार्जिन, सिक्स इज द थिकनेस, है ना। अब इन सभी स्टेप्स को टुडे वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल. सो आई एम जस्ट टेकिंग ए न्यूमेरिकल. So a cylindrical steam pressure vessel of 1 meter inside diameter, है ना, 1 meter. So diameter is given 1000 mm. Diameter is given 1000 mm. Is subjected to internal pressure of 2.5 megapascal. So pressure is given 2.5 megapascal. Design a double riveted, double strap longitudinal butt joint. देखिए डबल स्ट्रैप ना, डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया आपको ये दे देते हैं कि मान लीजिए अभी जॉइंट को डिजाइन करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द स्ट्रैप्स आर ऑफ इक्वल विड्थ. द पिच ऑफ द रिवेट्स इन द आउटर रो शुड बी ट्वाइस ऑफ द पिच ऑफ द रिवेट्स इन द इनर रो. A zigzag pattern is used for the rivets in inner and outer rows. काफी सारी इंफॉर्मेशन है ना. zigzag पैटर्न है, outer rows का जो pitch है that is double of the pitch of the inner rows, and efficiency of the riveted joint should be at least 70%. The permissible tensile stress is given 80, so this is the value for sigma t. The permissible shear stress is 60 megapascal, so it is the value for tau. Assume that the rivets are in double shear. Assume that the rivets are in double shear, are 1.875 times stronger than in single shear. तो ठीक है, 1.875 का ये जो फिगर है ये IBR की तरफ से है ना. तो यदि ये ना भी दिया होता तब भी हम डबल के लिए 1.875 यूज करते, बट इट इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट्स फाइन. एंड द जॉइंट डू नॉट फेल बाय क्रशिंग. कैलकुलेट, है ना. कैलकुलेट में नंबर सबसे पहला है थिकनेस ऑफ द प्लेट. You have to calculate the thickness of the plate. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. T is given by PD divided by 2 sigma T eta plus corrosion allowance. This is the formula, है ना. So pressure is given in question, है ना. How much is the pressure? I think it is given 2.5 megapascal. ना मैंने देखा है, देखिए pressure is given 2.5 megapascal. Diameter is given 1000 mm. Unit का ध्यान रखिएगा. I am putting diameter in mm because sigma t is in megapascal Newton per mm square. 2 times sigma t. Sigma t is given in question. It is 80 megapascal. Sigma t is 80. So I am just using 80 over here. And efficiency of the joint is also given in question. How much? 70%. So I am using 0.7 for the efficiency plus corrosion allowance. Corrosion allowance is used for thinning of the plate due to the corrosive atmosphere. So it is generally taken between 1 to 2 mm. So I am taking 2 mm as a corrosion allowance in correspondence to thinning of the plate. So please solve it. में दिया होगा क्या? Yes. सर क्वेश्चन में दिया होगा corrosion allowance. हाँ. सर क्वेश्चन में दिया होगा corrosion allowance. Corrosion allowance question में दिया हुआ है? No, it is not given. है ना. Corrosion allowance is not given. You can assume corrosion allowance between 1 to 2 mm. है ना. It is general standard. So I have taken the maximum boundary. 1 से 2 mm के बीच में जो भी यूज करना है, 1.5 mm यूज कर लीजिए, 1 mm कर लीजिए, 2 mm कर लीजिए, as per your choice. So I have used 2 mm as the corrosion allowance. So please solve it. What is the for the thickness is coming? 24.32. 24.32. 24.32. Very good. Right. 24.32 mm. So it is approximated to 25 mm. है ना. So plate thickness first step is now over. Now come to the second step. Diameter of the rivets. So diameter of the rivets में दो condition होती हैं. ये if the thickness is more than 8 mm. Our thickness is 25 mm. So thickness is more than 8 mm. So when T is greater than 8 mm, then we use the Unwin formula for calculate the rivet diameter. So rivet diameter is calculated by 6 root T. So it is 6 root 25. Solve it. 30 आएगा. 30. So it is 30 mm. So second step is now over. ठीक है. Third step is pitch of the rivets. So pitch of the rivets कैसे calculate करते हैं? Third step के लिए
we calculate the tensile failure of the tensile strength of the plate, है ना? Tensile strength of the plate is PT and shearing strength of the rivets is PS. So by equating PT equal to PS, we calculate the pitch of the rivets. ये मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहा था मैं, तब भी मैंने इसका एक फॉर्मूला भी बनाया था, तो उस फॉर्मूले में यही स्टार्ट होता है, PT इक्वल टू PS करना है, ठीक है? अब PT के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, P माइनस D मल्टीप्लाइड T इंटू सिग्मा T इक्वल टू PS के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, PS के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जितने भी रिवेट होंगे, है ना, मान लो n नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, उसमें से कुछ रिवेट सिंगल शेयर में होंगे, कुछ रिवेट्स डबल शेयर में होंगे। तो पहले आप सिंगल शेयर वाले रिवेट्स का PS लिखेंगे, तो एरिया ऑफ वन रिवेट इज पाई बाय 4 d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिवेट्स n1 मल्टीप्लाइड बाय टाउ, है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंगल शेयर, प्लस pi by 4 d square, it is the area of one rivet multiplied by n2. N2 is the number of the rivets which are in double shear. So for double shear we have to multiply by a factor 1.875 and then multiplied by tau. ठीक है, देखो ध्यान से समझ लो PS कैसे लिखा जाता है। PS लिखने का तरीका है कि आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स हैं उनमें से कुछ रिवेट्स सिंगल शेयर में होंगे, कुछ डबल शेयर में होंगे। तो सिंगल शेयर का पहले लिख लीजिए, ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज सिंगल शेयर एंड दिस इज फॉर डबल शेयर। डबल शेयर के लिए हमने फैक्टर क्या यूज किया है, 1.875 एज पर द IBR रेगुलेशन इन प्लेस ऑफ 2। तो बस यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, P हमारा अननोन है, D की वैल्यू कितनी है, स्टेप 2 में हमने 30 mm निकाल ली है, प्लेट थिकनेस स्टेप 1 में हमने 25 mm कैलकुलेट किया हुआ है, सिग्मा T क्वेश्चन में 80 मेगापास्कल दिया हुआ है ना। अब हमें चाहिए पाई बाय 4 d स्क्वायर इंटू n1 इंटू टाउ, ठीक है। अब d की वैल्यू तो पता है, n1 और n2 हमें अभी पता नहीं है, वी डोंट नो n1 एंड वी डोंट नो n2। अब n1 और n2 को निकालने के लिए आपको क्या है, जॉइंट की डिजाइन जरूरी है कि जॉइंट कैसा है। n1 n2 हमेशा चेंज हो जाते हैं, यदि आपका जॉइंट ट्रिपल रिवेटेड है तो चेंज हो जाएंगे, डबल रिवेटेड है तो चेंज हो जाएंगे, है ना, सिंगल स्ट्रैप है तो चेंज हो जाएंगे, डबल स्ट्रैप है तो चेंज हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है जॉइंट की डिजाइन पर। n1 n2 को फाइंड करना आना चाहिए। तो अभी देखिए क्वेश्चन में जॉइंट हमें दिया नहीं है, लेकिन जॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, जॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई। तो मैं अभी पहले जॉइंट को ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ द जॉइंट और उसके बाद में n1 और n2 को मैं कैलकुलेट करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जॉइंट ड्रॉ करता हूँ। जॉइंट के बारे में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन है ना, जॉइंट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन से देखें कि जॉइंट हमारा डबल रिवेटेड है, ये सारी बातें क्वेश्चन में दी हुई है कि जॉइंट हमारा कैसा है, डबल रिवेटेड है। जॉइंट हमारा डबल स्ट्रैप है, ये भी दिया हुआ है ना, डबल स्ट्रैप है और हर स्ट्रैप इक्वल भी है, इक्वल स्ट्रैप, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और उसमें जिगजैग पैटर्न है, जिगजैग पैटर्न है। ये सारी बातें क्वेश्चन में दी हुई है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जॉइंट को डिजाइन करना यही महत्वपूर्ण है जिससे आप n1 और n2 निकाल सकें। तो देखिए डिजाइन है डबल रिवेटेड, मैं गोले लगा देता हूं। देखो एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है डबल रिवेटेड, दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है डबल स्ट्रैप है, तीसरी लॉन्गिट्यूडनल तो है ही है, बट जॉइंट है, ये भी ठीक है, स्ट्रैप्स इक्वल विड्थ के हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो पैटर्न है वो जिगजैग पैटर्न है, ये इंफॉर्मेशन की है। और क्या है, आउटर रो की जो पिच है वो ट्वाइस है इनर रो की पिच की, है ना। तो आउटर रो की पिच यदि P है तो इनर रो की पिच कितनी हो जाएगी, P/2 हो जाएगी, है ना। आउटर रो की पिच यदि P है तो इनर रो की पिच कितनी हो जाएगी, P/2 हो जाएगी। ये सारी बातें हमको क्वेश्चन में दी हुई है। अब इन इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू ड्रॉ द जॉइंट, ठीक है। तो चलिए मैंने जॉइंट ड्रॉ किया, ये मेरी मेन प्लेट है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरी क्या है, मेन प्लेट है। तो अब इस मेन प्लेट में यहाँ कहीं जॉइंट आएगा, ये तो मेरा जॉइंट हो गया, है ना। अब इस मेन प्लेट की थिकनेस क्या है, T, और T हम स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी, 25 mm, ठीक है, और ये जॉइंट हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डबल रिवेटेड, मतलब 2 रो आनी है। तो इस जॉइंट के लेफ्ट में 2 रो आएंगी और राइट में भी 2 रो आएंगी। तो मैं केवल लेफ्ट ड्रॉ कर दूंगा, जैसा लेफ्ट में ड्रॉ होगा वैसा ही राइट में ड्रॉ हो जाएगा। अब देखो डबल स्ट्रैप है और इक्वल स्ट्रैप है, तो पहले स्ट्रैप बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पहली अपर स्ट्रैप है और इस अपर स्ट्रैप की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, T1, और लोअर स्ट्रैप की
भी थिकनेस हो जाएगी, ये लोअर स्ट्रेप आपका बन गया, तो इसकी थिकनेस भी इक्वल है, इक्वल स्ट्रेप है, तो दोनों की थिकनेस बराबर होगी। अन्यथा ये T1 और T2 होती हैं अनइक्वल होने पर। ठीक है, तो T1 अभी हमें पता नहीं है, वो स्टेप नंबर 6 में निकलेगा, उसके लिए भी फॉर्मूले हैं, है ना। T1 के लिए जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको पता है, हम बता चुके हैं, उसको स्टेप 6 में ही देखेंगे। तो अब ये जॉइंट है, अब जॉइंट से लेफ्ट में ये डबल रिवेटेड है, इसका मतलब सबसे पहले एक रो मैंने बना दी, सो दिस इज माय फर्स्ट रो। ठीक है, अब दूसरी रो मैंने बना दी, सो दिस इज माय सेकंड रो। ठीक है, जैसे लेफ्ट में दो रो हैं, ऐसे ही जॉइंट के राइट में भी दो रो आएंगी, उनको मैं बना नहीं रहा हूं, आप सिमेट्री से बना सकते हैं, है ना। तो देखिए, अब मैंने जॉइंट को थोड़ा सा आगे प्रोजेक्शन ले लिया, ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, इस वाली रो को भी मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, ध्यान से देखिएगा, इधर दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले जॉइंट का भी मैंने प्रोजेक्शन, रो का भी मैंने प्रोजेक्शन ले लिया। ठीक है, अब मुझे टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो इस वाली रो में, है ना, अब रो के नाम, इस वाली रो को क्या बोलेंगे, इनर रो, इस वाली रो को हम क्या बोलेंगे, आउटर रो। दो ही रो है यहाँ पे, दो से ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि हमारा जॉइंट डबल रिवेटेड है। देखो, पहली बात हमने पूरी कर दी, डबल स्ट्रैप है, ये भी हमने पूरी कर दी, इक्वल स्ट्रैप है, ये भी हमने पूरा कर दिया। अब जिगजैग पैटर्न हमको देखना है, हमको जिगजैग पैटर्न बनाना है। तो जिगजैग पैटर्न कैसे बनेगा, यदि हम इनर रो में रिवेट्स ले लें, मान लीजिए ये पहला रिवेट, मान लेते हैं ये दूसरा रिवेट, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये इस तरह से आप कितने भी मान लें, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन पर पिच पे करनी होगी। 5-6 दिखा दीजिए, दिखाने के लिए 4 दिखा दीजिए, 5 दिखा दीजिए, तो ये तो इनर रो हो गई। अब हमें आउटर रो में रिवेट्स दिखाने हैं, तो यदि चैन पैटर्न होता है तो हमारा सेंटर यहाँ पे आता, सेंटर के सामने सेंटर, है ना, इसके सेंटर के सामने सेंटर, ऐसे ही हर रिवेट के सेंटर के सामने सेंटर आप मार्क कर सकते थे, यदि ये चैन रिवेटिंग होती तो। लेकिन ये चैन रिवेटिंग नहीं है, तो इन दोनों सेंटर के बीच में सेंटर मार्क करके एक रिवेट बनाइए आप। मेरी बात समझ में आ रही है, इन दोनों रिवेट्स के बीच में एक रिवेट्स बनाइए। सिमिलरली इन दोनों रिवेट्स के बीच में आपको एक रिवेट बनानी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि आउटर पिच डबल है इनर पिच का। तो देखो, इनर पिच क्या होगी, यहां से लेके यहां तक ये इनर पिच है, दिस इज द इनर पिच। तो यदि मैं रिवेट, अगला रिवेट यहीं पर ले लूंगा, तो आउटर पिच भी इनर पिच के बराबर हो जाएगी। लेकिन मुझे डबल करना है, तो मैं यहाँ पे एक सेंटर छोड़ दूंगा और फिर यहाँ का सेंटर लूंगा, सो दिस इज विल बी माय नेक्स्ट रिवेट। ध्यान से समझना। अब आउटर रो की पिच के बारे में ध्यान दो, यदि आउटर रो की पिच को मैं P से रिप्रेजेंट करूं, तो इनर रो की पिच जो है उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना। तो देखिए, ये मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को भी कवर कर दिया। तो अब मेरे जॉइंट में आप देखिए कि सारे पॉइंट कवर हैं, इसका मतलब अब मेरा ये जॉइंट ठीक है, मैंने सही ड्रॉ किया है। ठीक है, तो मैंने एक बार फिर से समझ लो, इनर रो के मैंने रिवेट मार्क कर दिए, फिर आउटर रो में मैंने जिगजैग पैटर्न रखा है, और पिच को मैंने डबल रखा है। यदि मुझे पिच इक्वल रखनी होती तो मेरा रिवेट यहां पर आता, है ना, इसलिए मैंने बीच में एक रिवेट छोड़कर फिर रिवेट मार्क किया है। ठीक है, तो अब आउटर रो के लिए पिच जो है वो इनर रो की पिच का डबल है, ये P/2 है, तो ये P है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पर पिच लेंथ में मैं रिवेट की संख्या कैलकुलेट करूंगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने रेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं पेन ले लेता हूं। चलिए, मैंने टॉप व्यू दोबारा से बना लिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों के सेंटर में एक रिवेट ले लिया, दिस वन। इन दोनों के सेंटर में नहीं लेना है, इन दोनों के सेंटर में लेना है, क्योंकि पिच डबल है। ठीक है, अब देखिए, पर पिच कैलकुलेशन करनी है, तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सेंटर टू सेंटर से। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या है, ये पिच को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज पिच। तो ये पर पिच कैलकुलेशन है, ये पूरा एरिया क्या है, पर पिच कैलकुलेशन है। अब इस पर पिच में देखो, आधा रिवेट तो ये आया, है ना। मैं जरा सा कलर चेंज करूंगा, इरेज नहीं करूंगा। तो ध्यान से देखना आप, ये मेरी कौन सी रो है, इनर रो, ये कौन सी रो है, आउटर रो। आउटर रो में आप देखें कि ये वाला हाफ रिवेट, ये वाला हाफ रिवेट, बताओ डबल शेयर में या सिंगल शेयर में है,
बताइए, ये हमारी प्लेट है, ठीक है, प्लेट के ऊपर ये हमारा स्ट्रैप है, नीचे भी स्ट्रैप है, ठीक है, ये आउटर रो देखो दोनों स्ट्रैप में आ रही है, दोनों स्ट्रैप में जब हमारी शियर होगा सर, डबल है, शियर। तो ये डबल शियर ही होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये हाफ रिवेट और हाफ रिवेट ये डबल शियर में हुए, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये पूरा रिवेट और ये पूरा रिवेट डबल शियर में हुए या सिंगल शियर में हुए? ये भी डबल शेयर में। डबल शियर। हाँ, जब इक्वल स्ट्रैप होती हैं तो सारे रिवेट डबल शियर में होते हैं, एक कॉमन फंडा समझ लीजिए। यदि स्ट्रैप इक्वल विड्थ की हैं तो सारे रिवेट्स डबल शेयर में होते हैं, और यदि अनइक्वल विड्थ की होती हैं तो फिर आउटर रो वाला जो रिवेट है वो सिंगल शेयर में होते हैं और बाकी इनर रो और मिडिल रो वाले जो होते हैं वो डबल शेयर में। तो यहाँ पर सारे रिवेट्स डबल शेयर में हैं, तो इसका मतलब मेरे n1 की वैल्यू मेरे केस में क्या हो गई 0, और n2 की वैल्यू मेरे केस में कितनी हो गई, दिस इज 1, दिस इज 1, 1 2 आधा और आधा, टोटल कितना हुआ बताओ, 1 1 आधा आधा, सबको टोटल कर दो, 1 प्लस 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3। तो n2 की वैल्यू आपकी हो गई 3। तो 3 रिवेट्स जो हैं वो डबल शेयर में हैं और 0 रिवेट्स जो हैं वो सिंगल शेयर में हैं। इस जॉइंट की ये कहानी है। तो अब आप मेरे ख्याल से अब आप बड़े आराम से बना लिया करेंगे जॉइंट को। हर क्वेश्चन में जॉइंट का डिजाइन बदल जाएगा, बस आपको खींचना आना चाहिए, क्वेश्चन की टर्म्स कंडीशंस को आप फुलफिल कर दीजिए। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे अपने सिंगल रो में 4 रिवेट्स माने हैं ना? नहीं 4 नहीं माने, मैंने तो एक पैटर्न दिखाया है। इस 4 के बाद में जैसे कि मान लो 4 के बाद में ये 5वां 6वां 7वां 8वां, मतलब कोई मैंने लेंथ को दिखाया ही नहीं है। मैं तो पर पेज कैलकुलेशन इसी वजह से कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। तो यदि मैं मान लो आउटर रो में दिखाता तो उसके बाद क्या करता, मैं एक पॉइंट फिर से छोड़ देता, तो अगला जो रिवेट है वो यहाँ ना आकर के इन दोनों के बीच में आता, समझ रहे हैं? तो आउटर रो के रिवेट जो है कुछ इस तरह से चलते हैं। मेरे ख्याल से सर ये समझ नहीं, सर ये बीच वाला नहीं समझ में आया, आपने ये छोड़ा क्यों बीच में? बीच में छोड़ा क्यों है? यस सर। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आउटर रो की जो पिच है वो अंदर की पिच डबल है, तो यदि मैं नहीं छोड़ूंगा तो पिच तो बराबर हो जाएगी ना। देखो यदि मैं यहाँ पर भी एक रिवेट ले लेता तो ये वाली जो पिच है और जो बाहर वाली पिच है, अंदर वाली पिच और बाहर वाली पिच आपस में इक्वल नहीं हो जाती, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी होती? तो मैं जो जॉइंट डिजाइन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो n1 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो अब आप वापस आ जाओ। जब n1 0 हो गया तो ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा नलीफाई हो गया। n1 जब 0 है हमारे केस में तो ये पहला टर्म तो खत्म हो गया, अब तो केवल दूसरा टर्म बचा। अब दूसरे टर्म में देखो π/4 d स्क्वायर, d की वैल्यू कितनी है 30, 30 का स्क्वायर, n2 हमारा कितना आया है, कितने रिवेट डबल शेयर में आए हैं अभी तो कैलकुलेट किया है, कितने रिवेट डबल शेयर में आए थे, n2 की वैल्यू 3, अभी तो कैलकुलेट किए, देखो n2 = 3 n1 = 0। तो n1 0 होने से पहला टर्म खत्म हो गया, n2 की वैल्यू 3 पुट कर दी और 3 पुट करते ही फिर ये कितना हो गया 1.875 एज इट इज। टॉ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 60, चेक कर लीजिए टॉ कितना दे रखा है, टॉ इज गिवन 60, सो इट इज 60 इनटू, बस हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन में केवल p तो अननोन है, तो p को जरा फाइंड कर दीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कर दीजिए। 119. How much? 119.28. 149.28, 119.28. 119 दोबारा से कैलकुलेट करके 149 समथिंग आएगा। उसमें ये प्लस 30 नहीं किया शायद आपने, p - 30 है ना, ये प्लस 30 भी तो होगा उधर जाके। 149.28. 149.28 आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यस गुड। तो देखो हमने पिच निकाल लिया, तो हमारा थर्ड स्टेप इज ओवर, है ना। अब थर्ड स्टेप के बाद में पिच पे एक बात और इम्पोर्टेंट बतानी है आपको। तो अब हमारे थर्ड स्टेप के केस में एक सेकंड, हाँ, तो अब हमारी पिच आ गई कितनी 149.28, ठीक है। अब बॉयलर आईबीआर के हिसाब से एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, आईबीआर ये कहता है कि पिच को आपको जरा सा ये भी चेक करना है
कि उसकी एक मिनिमम लिमिट होती है और एक उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है ना। पिच की एक आईबीआर के हिसाब से एक मिनिमम लिमिट है और एक मैक्सिमम लिमिट है, तो पिच की वैल्यू इन दोनों लिमिट्स के अंदर में होनी चाहिए, है ना। आईबीआर ये कहता है कि पिच की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, मैंने थ्योरी पढ़ाते वक्त नहीं बताया था ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पिच को आपको क्या करना है, चेक करना है। तो लिमिटेशंस ऑन दी पिच, लिमिटेशंस ऑन पिच, तो पिच पे क्या लिमिटेशन है, एक तो पी मिनिमम जिसके लिए फॉर्मूला 2d है, पी मैक्सिमम जिसके लिए फॉर्मूला ct प्लस 41.28 है, ठीक है, ये डाटा बुक में दिए हुए हैं। अब 2d, 2 इंटू डी हमारा कितना है 30, तो कितना हो गया 60 mm। इसका मतलब आईवीआर ये कह रहा है कि पिच की वैल्यू 60 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारी कितनी आई है 149 आई है ना, 60 से ज्यादा आई है, इसका मतलब ये हमको फॉलो कर रहे हैं, ये बात हमारे लिए ठीक है। ठीक है, मान लीजिए हमारा आंसर 149 की जगह सिर्फ 49 आया होता, मान लीजिए, तो हमारी मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए थी 60 और हमारा आंसर 49 आ रहा है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो उस केस में हम 49 को कम से कम 60 तो रखते ही, तो हम अपनी पिच को तुरंत चेंज कर देते, ये 49 नहीं हो सकता, ये 60 mm लिया जाएगा, बिकॉज देयर इज ए लिमिटेशन ऑन द पिच। ठीक है, अब मैक्सिमम लिमिटेशन देखिए, मिनिमम लिमिटेशन तो हमने चेक कर ली। अब मैक्सिमम लिमिटेशन में टी तो क्या है, प्लेट थिकनेस, जो कि हम स्टेप 1 में निकाल चुके हैं, तो टी की वैल्यू तो पता है कितनी है 25 है, प्लस 41.28। अब बचा सी, ये सी जो है एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कहां से यूज करेंगे, डिजाइन डाटा बुक से यूज करेंगे। आईबीआर के हिसाब से एक टेबल है ना, डिजाइन टेबल और डिजाइन डाटा बुक से यूज करेंगे। तो अब इस टेबल में मैं आपको जरा शेयर करता हूं, ये वाली टेबल डाटा बुक में है ना, मेरे पास ओपन है, तो फिलहाल मैं इसे तो स्टॉप शेयर कर देता हूं, या मैं न्यू शेयर कर लेता हूं। न्यू शेयर में डाटा बुक एंड दिस वन, यस। तो देखिए आपको ये टेबल नंबर 8.44 दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? यस सर। दिख रहा है ना, गुड। अब इसमें देखो वैल्यूज ऑफ सी, है ना, तो अब देखो नंबर ऑफ द रिवेट्स पर पिच लेंथ। तो अभी हमने नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट किए थे, तो कितने रिवेट्स आए थे हमारे एक पिच में टोटल? 3 आए थे। सिंगल शेयर में 0 थे, डबल शेयर में 3 आए थे, टोटल रिवेट्स 3 थे, है ना। तो अब इसमें 1 रिवेट, 2 रिवेट, 3 रिवेट, तो हमारे लिए अभी 3 रिवेट वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग देखना है। अब ये देखो पहला कॉलम क्या है, लैप जॉइंट। अभी हम लैप जॉइंट डिजाइन कर रहे हैं ना बट जॉइंट डिजाइन करना है, हम तो लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट डिजाइन कर रहे हैं, तो ये 4.17 हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये डैश लगा हुआ है, सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, सर थर्ड वाला है। हाँ, तो हम डबल स्ट्रैप बट जॉइंट डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या वैल्यू होगी 4.63। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 4.63। आई थिंक इट इज क्लियर। सी को कैसे देखते हैं, यहां से देखना है, डाटा बुक से देखना है। तो सी की वैल्यू, अब मैं इसे स्टॉप शेयर कर रहा हूं, और स्टॉप शेयर करने के बाद में मैं दोबारा से पावर पॉइंट पे आ गया। हाँ, तो सी की वैल्यू आई थी हमारी 4.63, तो मैंने यहाँ पे 4.63 मल्टीप्लाई कर दिया, और जरा सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है फिर ये फाइनल। 157.03। यस, तो ये मैंने 4.63 यहाँ पे लिख लिया, और आपने मुझे आंसर बताया है 1 कितना बताया 7.03। 157.03 mm। तो देखिए मैक्सिमम पिच के बारे में लिमिटेशन है कि 157 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी कितनी आई है 149। तो हमारी जो पिच आई है वो मिनिमम पिच से ज्यादा है, मैक्सिमम पिच से कम है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई कर रही है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब ये बिल्कुल आइडियल चीज है कि आपकी पिच मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई कर रही है, तो हमें कोई करेक्शन नहीं करना है, इट इज फाइनल, जो भी हमारा आया वो फाइनल है। मान लीजिए 149 की जगह पर 159 आई होती फॉर एग्जांपल, और हमारी मैक्सिमम पिच कितनी है 157, तो हमारी 159 कैलकुलेट हुई थी, लेकिन 157 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो हम अपनी पिच को रिड्यूस कर लेंगे, है ना, और 157 से थोड़ा सा अंदर ले आएंगे, 155 अज्यूम करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि जो भी पिच कैलकुलेशन से आएगी उसको हमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिटेशन से चेक करना है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है?
ठीक है, तो अब हमारी पिच कितनी हो गई 149.28। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द इनर रो एंड आउटर रो। तो इनर रो और आउटर रो के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पीटी, है ना। पीटी मतलब ट्रांसवर्स पिच। तो ट्रांसवर्स पिच के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बताइए जरा। ट्रांसवर्स पिच के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा। सर 0.33p + 0.67d zigzag के लिए। हाँ, अब इसमें ही मुझे एक चीज बतानी है आपको, है ना। ट्रांसवर्स पिच पे भी डिस्कशन रिक्वायर्ड है। तो देखो, तो मैं जरा सा इरेज करता हूँ पहले। सर आपने बताया था मशीन डिजाइन डाटा बुक से देखते हैं। मशीन डिजाइन डाटा बुक से देखते हैं पीटी को, है यस ना। सर। हाँ Yes, बिल्कुल, sir. डाटा, हाँ तो डाटा बुक में है, जो फॉर्मूला मैं भी बता रहा हूँ डाटा बुक में, जो टेबल मैंने आपको दिखाई है ना, बस उसके आसपास ही है वहीं पर, है ना। ये सारे फॉर्मूले वहां पर हैं, वो आप स्वयं देख लीजिएगा। मुझे समझाना सिर्फ आपको ये है कि अभी हमारा जॉइंट जो है वो कैसा है। यहाँ पर एक रिवेट है, फिर एक रिवेट है, फिर एक रिवेट है, फिर एक रिवेट है, उसके बाद यहाँ रिवेट्स हैं, है ना, फिर यहाँ रिवेट्स हैं। तो बताओ, जितने इस रो में रिवेट ज्यादा है या इस रो में रिवेट ज्यादा है, किसमें ज्यादा है रिवेट्स, है ना। दोनों, किसी भी रो में रिवेट इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। एक केस बनता है इक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स, इक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स, और दूसरा केस बनता है अनइक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स, अनइक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स। तो जब इक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स होते हैं तब फॉर्मूले हैं पीटी के, एक तो 2d और एक फॉर्मूला है 0.33p + 0.67d। 2d वाला फॉर्मूला चेन रिवेटिंग के लिए है और ये वाला फॉर्मूला जिगजैग रिवेटिंग के लिए है, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था। तो वो जो थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया वो केवल ये वाला केस है, इक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स वाला केस। अब अनइक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स के केस में, अनइक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स के केस में जो पिच है पीटी, है ना, आउटर रो से अंदर वाली रो के बीच में, है ना, आउटर रो टू इनर रो। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 0.2p + 1.15d, 0.2p + 1.15d। ठीक है, तो अभी हमारे केस में तो दो ही रो है ना, कितनी रो है, दो ही रो है। कभी कभी आपका जॉइंट ट्रिपल रिवेटेड होगा, कभी कभी आपका जॉइंट कैसा होगा, ट्रिपल रिवेटेड होगा। तो ट्रिपल रिवेटेड के केस में क्या होगा, एक इनर रो होगी, फिर एक मिडिल रो होगी और फिर एक आउटर रो होगी। उस केस में 3 रो हो जाएंगी आपकी। तो आउटर रो से मिडिल रो के बीच में तो यही फॉर्मूला रहेगा, यही वाला रहेगा, pt = 0.2p + 1.15d। लेकिन मिडिल रो से इनर रो के बीच में जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1.65p + 0.67d। ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों सभी चारों फॉर्मूले जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, these all formulas are given in data book, nothing has to be memorized, बट समझना है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब हमारे केस में केस ए फॉलो हो रहा है या केस बी फॉलो हो रहा है, बताइए। हमारे केस में केस बी फॉलो हो रहा है, और केस बी में आप ये वाला यूज करेंगे या ये वाला यूज करेंगे। आउटर रो से इनर रो के लिए ये वाला है, और ये वाला जो है वो मिडिल रो से इनर रो वाला है। ठीक है, जब ट्रिपल रिवेटेड होगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी, डबल रिवेटेड में आपको केवल इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपके लिए ट्रांसफर जिसका जो फाइनल फॉर्मूला हुआ वो ये हुआ, pt = 0.2p। तो इसको आप जरा कैलकुलेट करिए, 0.2 × p। अब p कितना है आपका, p कितना कैलकुलेट हुआ था आपका स्टेप 3 में, आंसर बताइए। स्टेप 3 में आपका पिच कितना कैलकुलेट हुआ था, 149 पॉइंट कितना हुआ था, 149.28। हाँ तो इसको राउंड ऑफ करके 150 mm मान लेते हैं, है ना। तो 0.2 × 150 + 1.15 × d, d मतलब रिवेट डायमीटर। रिवेट डायमीटर स्टेप 2 में हमारा कितना कैलकुलेट हुआ था, 30। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है पीटी, सॉल्व कर दीजिए। 65 ले लेंगे सर, राउंड ऑफ करके। हाँ, कितना आ रहा है वैसे, 64.356। 65, तो इसको राउंड ऑफ करके 65 mm ले लेंगे। तो हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया, है ना। बस 2 मिनट और दीजिए, फिर आज की क्लास एंड करते हैं।
तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया। मार्जिन के लिए तो कुछ नहीं बताना है, m इक्वल टू 1.5d होता है, तो 1.5 into 30 कितना हो गया 45 m। स्टेप 5 इज आल्सो ओवर। नाउ कम टू स्टेप 6, थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप। अब हमारे दो स्ट्रैप हैं, एक ऊपर एक नीचे, दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो दोनों की थिकनेस बराबर होगी, दोनों की थिकनेस बराबर होगी तो थिकनेस ऑफ स्ट्रैप इज रिप्रेजेंटेड बाय T1। T1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 0.2625 T P माइनस डी डिवाइड बाई P माइनस 2D। ये भी डाटा बुक में दिया है। तो अब इसमें बस T की वैल्यू कितनी है 25, पिच की वैल्यू कितनी है 150, D की वैल्यू कितनी है 30, सब कुछ तो दिया है। फाइंड T1। T1 कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटेड है, ये 20.83 आ रहा है। कितना आ रहा है 20.83 mm। तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने कर दिया 21 mm। तो स्टेप 6 इज ओवर, स्टेप 6 हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। ईटा कैसे निकालते हैं बताओ, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं जॉइंट की? सर लोएस्ट ऑफ पीएस पीटी वाली। हाँ, लोएस्ट ऑफ पीटी पीएस एंड पीसी, है ना। अब पीसी के लिए तो क्वेश्चन में मना किया हुआ है, जॉइंट डू नॉट फेल बाय क्रशिंग लिख रहा है ना क्वेश्चन में, तो पीसी तो लेने की जरूरत है नहीं, है ना। तो आप जॉइंट की एफिशिएंसी क्या करेंगे, सॉलिड प्लेट की एफिशिएंसी होती है पीटी सिग्मा टी। सॉलिड प्लेट की एफिशिएंसी क्या होती है पीटी सिग्मा टी। और टेंसाइल फेल्योर के केस में क्या हुआ P माइनस डी इंटू टी सिग्मा टी। तो देखो T से T कैंसिल, सिग्मा T से सिग्मा T कैंसिल, P माइनस डी बाई P। अब P की वैल्यू कितनी है 150, D की वैल्यू कितनी है 30, P की वैल्यू कितनी है 150 इंटू 100 परसेंटेज करने के लिए। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितने परसेंट एफिशिएंसी आ रही है 80% आ गई सर, ये तो डायरेक्ट कितना 120 बाई 150, 120 बाई 150, 80% आ रही होगी। यस सर 80 हाँ 80% एफिशिएंसी। तो 7वां स्टेप के ऊपर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, हमने जॉइंट डिजाइन करना सीख लिया। अब इस सारी डायमेंशन निकालने के बाद जॉइंट को ड्रॉ करना पड़ता है विद डायमेंशन, है ना। जो कुछ भी आपने कैलकुलेट किया वो आप जॉइंट में शो करिए। तो उसके लिए डायग्राम मैंने बना रखा है, ये देखिए, ये मेरा फाइनल डायग्राम हुआ। अब इस डायग्राम में देखो, इसको क्या कहेंगे हम, नाम बताते जाओ। इसका नाम क्या है मेन प्लेट। मेन प्लेट की थिकनेस हमारी कितनी आई थी 25, T इक्वल टू 25 हमने कैलकुलेट की है स्टेप 1 में। इस प्लेट को क्या कहते हैं 21 mm जो दिख रहा है, ये किसकी थिकनेस है स्ट्रैप प्लेट, है ना 21 mm। ये हमारी कौन से स्टेप में आई थी, स्टेप नंबर 6 में हमने कैलकुलेट किया T1। ठीक है, तो 21 हमने यहाँ शो कर दिया, ये भी 21, ये भी 21। ठीक है, अब जरा टॉप व्यू पे आओ, हमारी पिच कितनी आई थी 150 के, तो देखो ये 150 दिखा रखा है। आउटर पिच है ये, आउटर रो की पिच। और जो अंदर वाली पिच है वो इसका क्या है हाफ है, हाफ। तो 150 का आधा कितना हो गया 75। ठीक है, अब देखो ये रिवेट डायमीटर ये शो कर दिया हमने कितना 30 mm। स्टेप 2 में आया था हमारा रिवेट डायमीटर। ठीक है, अब ये आ जाओ मार्जिन 45, ये मार्जिन है 45 mm, ये भी मार्जिन है 45 mm, और ये 65 क्या है पीटी ट्रांसवर्स पिच, जो हमारी स्टेप नंबर 4 में आई थी फॉर्मूले से 0.2 P प्लस 1.15 D से। तो ये हमारी क्या है पीटी। तो देखो सारी डायमेंशन जो भी हमने कैलकुलेट की वो बकायदा हमने डायग्राम में शो कर दी। तो एग्जाम में जब भी, मतलब अभी तो अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रही है, बट फ्यूचर में ऑफलाइन एग्जाम यदि होते हैं देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो आफ्टर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। और बड़ा रफ फिगर बनानी है, कोई ऐसा नहीं बहुत स्केल से बनाना है। बस हमें दिखना चाहिए कि डबल रिवेटेड है, डबल स्ट्रैप है, नंबर ऑफ रिवेट, आउटर पेज डबल है। एक जनरल रफ डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना होगा। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आज की क्लास को एंड करता हूँ एक बार, और फिर 2 बजे हम जो है, अब हमारा रिवेटेड जॉइंट में केवल सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट रह गया है, उसको हम अभी लैब वाली क्लास में पूरा कर लेंगे। ठीक है, और उस क्लास के कल से हम शुरू कर देंगे वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, 2 क्लास या 3 क्लास में वेल्डेड जॉइंट पूरा हो जाएगा, और 1 या 2 क्लास मुझे लगेगी थ्रेडेड जॉइंट के लिए। कुछ मुझे जरूरत पड़ी तो 1 क्लास में एक्स्ट्रा भी ले लूंगा, बट वी विल फिनिश आवर सिलेबस विद इन टाइम। तो अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, मैं जरा स्टॉप शेयर कर लेता हूँ। हाँ, कोई डाउट है तो जरा बताइए।
हाँ बोलिए। सर जैसे अभी सर कई सारे फॉर्मूले थे तो सर ये मशीन डाटा बुक में है, हाँ और जब सर पेपर होगा अभी अभी जो सर करंट में होगा, तो सर इसमें कैसे यदि करेंगे? हाँ, तो उसमें मैंने कहा ना कि क्वेश्चन के अंदर आपको डाटा बुक की, हम ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें आपको डाटा बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यदि जरूरत पड़ी भी तो आपको पीटी वगैरह जिस जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी कि अज्यूम ट्रांसफर स्विच इक्वल टू दिस, है ना, वो फॉर्मूला वहां पर गिवन मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट द डाटा बुक एनी हाउ, बस प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ डाटा बुक में ये चीज यहाँ पर है, आपको आना चाहिए। सर एक बात बता दीजिए, एक डाउट है। हाँ मैं एक मिनट चैट पढ़ लूँ। अगर रिवर्स बेंडिंग का केस में स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है सर हमें ने पूछा। तो सिग्मा, अच्छा आपका यही है, ओके, तो सिग्मा एम्पलीट्यूड ही सिग्मा मैक्स होता है, बट इसमें हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं? अच्छा आपका ये कहना है कि, अच्छा ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो रिवेट्स की प्लेट में हम जब रिवेट लगा रहे हैं तो रिवेट होल भी कर रहे हैं, रिवेट होल कर रहे हैं इसका मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है, प्लेट में होल होता है तो होल की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। यस सर। जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है तो केटी की वैल्यू कुछ न कुछ होनी चाहिए, यस सर। ठीक है, होनी चाहिए। तो हमने, आपका क्वेश्चन यही तो है कि हमने केटी क्यों नहीं लिया, हमने केटी का यूज क्यों नहीं किया यहाँ पर स्ट्रेस के लिए, है ना? यस सर। यस सर। यही क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर ये अज्यूम कर रखा है कि वी आर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। हियर वी आर, हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वो ये मानकर किया है कि वी आर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यदि हमें इफेक्ट लेना है तो फिर हम केटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली रिवेटेड डिजाइन, रिवेटेड की डिजाइन में, है ना, क्योंकि हम बहुत सारी राउंडिंग ऑफ करते हैं, इफिशियंसी भी 80% लेकर के चलते हैं पहले से, और कोरोजन अलाउंस भी हमने ले रखा है, तो उस केस में फिर हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जनरली हम लेते नहीं है डिजाइन के केस, है ना? पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने अच्छा बताया। रिवर्स बेंडिंग के जितने में भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी जो सिग्मा मैक्स निकालते हैं उसको डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी तो आता होगा कंसंट्रेशन फैक्टर सर, उसमें भी तो आता है। हाँ तो रिवर्स बेंडिंग में तो लेते हैं ना केडी, वहां पे हम लगाते तो हैं केडी। केडी इक्वल टू क्या होता है? केडी 1/kf सब, वो नॉच एफिशिएंसी वाला नहीं, हम लोग सिग्मा मैक्स निकालते हैं। सिग्मा हाँ। जैसे नॉर्मल सिग्मा नॉट दिया होता पहले जो फ्लक्चुएशन में करते थे क्वेश्चन में। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से क्या चीज रिड्यूस हो जाती है? एंडोरेंस लिमिट रिड्यूस हो जाती है मटेरियल की, है ना? यस सर। तो एंडोरेंस लिमिट निकालते वक्त हम क्या करते हैं? के, केबी, केसी, केडी करते हैं। यस सर। अब केडी जो है वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का ही तो फैक्टर है। केडी को हम कहते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर, और केडी इक्वल टू होता है 1/kf। केएफ होता है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, और केएफ का फॉर्मूला देखिए क्या है, उसमें केटी आता है, केटी माइनस 1 आता है ना, उसमें केटी आता है। तो केटी क्या है आपका? स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो उस फैक्टर को हम वहां पे एंडोरेंस लिमिट के फॉर्मूले में इनबिल्ट किए हुए हैं। अच्छा सर, इनडायरेक्टली ले रहा है मतलब। हाँ उसको ले रखा है हमने वहां पे, बट हियर वी आर इन केस ऑफ रिवेटेड जॉइंट वी आर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यस, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। सर मॉक टेस्ट वाले दिन क्लासेस हैं सर? अब ये मुझे नहीं, जैसा भी होगा आपके पास सूचना आ जाएगी, है ना? मैंने तो आज आपका ये एक्स्ट्रा लेक्चर लगवाया था कि मुझे लेक्चर्स चाहिए, तो आज अगले बुधवार में भी लेक्चर होगा आपका 10 बजे से। मैंने लेक्चर इसलिए बढ़वा दिए आपके लिए, ठीक है, क्योंकि सैटरडे का लेक्चर भी हमारा कम हो गया है ना नई टाइम टेबल में। तो अब हमें 4 लेक्चर मिल जाएंगे हर हफ्ते, 2 आज मिल जाएंगे, एक कल एक परसों। तो स्मूथली हमारा सिलेबस बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये पीपीटी में डाल दूंगा आपके लॉगिन में, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।